ہمارے آپ سب کے لالا عارف لوہار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک, سب کو عید مبارک. ہنستا مسکراتا چہرہ عمران بھائی, ماشاءاللہ. معصومیت بھی اور مسکراتے رہتے ہیں ایز آلویز. ہمارا تو جی ماشاءاللہ لالا جی سے کوئی 20 سال سے تعلق ہے, انہیں ہمیشہ ایسے ہی پایا. ہمدرد, سب کی خوشیوں میں شامل ہونے والے, بے شک بے اور شک. سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے والے. کیا بات ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ جب بھی آپ کی طرف سے چینل کی طرف سے کال گئی ہے کبھی انکار کیا انہوں نے؟ نہیں, انہوں نے چینل کی طرف سے بھی انکار نہیں کیا اور ویسے بھی کبھی انکار نہیں کیا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خان صاحب, اٹس a pleasure being with you. سیم ایئر سر, تھینک یو. جمی میوزیم سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بزدار صاحب. ارے السلام علیکم سر, آپ ادھر ہمارے شو میں. آپ رو کیوں رہے ہیں بھائی؟ آپ کی سیٹ جائے تو میں آپ سے پوچھوں. تکو ہے مان وطن اساں یار پردیسی, ٹیشن دیاں دو لینا, ٹیشن دیاں دو لینا, جے اسی نہیں رہے تے حمزہ نے بھی نہیں رہنا. مان وطن اساں یار پردیسی. بڑے پریشان لگ رہے ہیں. ابھی ان سے بات کرتے ہیں, اب ہم اپنے دوسرے گیسٹ کا انٹروڈکشن کروا لیں. جمی میوزیم سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں صاحب. ارے السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام, خیر مبارک جناب. بڑے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا ایسے آمنے سامنے. دل تو کرتا ہے روز آنے کو, مگر پابندیاں بڑی ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. مجھے تو اس بیٹے نے زندہ رکھا ہے. میاں دے نعرے بجنے ہی بجنے, میاں دے نعرے بجنے ہی بجنے, او ٹپاؤ او ٹپاؤ او ٹپا کے شیر نو جتاؤ کہ میاں دے نعرے بجنے ہی بجنے. کیا بات کیا بات کیا بات ہے, بڑی مہربانی جناب. اچھا, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ بڑے عرصے کے بعد اتنی پابندیوں کے باوجود آپ یہاں پہنچ گئے ہیں. ہاں جی, میری ہمت ہے, شیر آدمی ہے جی, میں کسی کو ڈرتا نہیں, بس حالات ہو جی ہو گئے. اچھا تساں کو مان ہے وطن اسٹیشن دیاں دو لینا, تمہیں تو کی لینا, کیا واپس. سر دے میاں صاحب تہاڈی نا زبان تھلے رکھنے والی گولی ہے تہاڈے کول؟ آپ کی نئی نئی حکومت آئی ہے, آپ باتیں کر سکتے ہیں. اس موقع پہ یہی کہوں گا, سڑکیں چ صندوق پیا, سڑکیں چ صندوق پیا, بزدار نو کڈ کے پی ٹی آئی چ نہیں سلوک رہا. تکو ہے مان عیداں دا اساں یار پردیسی. جی عارف صاحب, عید کا موقع ہے, ظاہر ہے عید کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ عیدیاں کتنی ملتی تھیں؟ وہ والی جو عیدیاں ہیں وہ یاد آتی ہیں کہ کتنی ملتی تھیں اور کیسے سنبھال کے رکھتے تھے؟ بالکل ساری رات کی تیاری ہوتی تھی, ہائے. اور صبح نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے, اور پورے گھر میں جو ایک ماحول ہوتا تھا, کیونکہ پورا مہینہ ایک رکت کے ساتھ ہم نے گزارا ہوتا تھا, اور اس کی جو ثمر ملتا ہے وہ آپ کو عید کو ملتا ہے. تو جو بچے ہوتے ہیں ان کی توقعات بڑھ جاتی ہیں کہ اب میں نے اتنے روزے رکھے ہیں, میرے والد صاحب مجھے زیادہ عید دیں گے, میں نے شاباشی زیادہ لی ہے, اور میں بھاگ دوڑ میں نے بہت کی ہے. تو ایک بڑا خاندان جو ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بڑی سی حویلی, جس میں آپ کانسیپٹ دیکھیں لگا لیں کہ 5 بہنیں 8 بھائی, ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہیں, اور ماشاءاللہ سے سب لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ابا ہمیں زیادہ. وہی نئے نوٹ آ جاتے تھے جب وہ تھدیاں آتی تھی, تو وہ جب میں کہتا تھا وہ لال والا نوٹ ہمیں ملے, نیا نیا ہٹ ہوا تھا. اچھا لال نوٹ نیا ہٹ ہوا تھا. ہاں, تو وہ اس کی ہوتی تھی. میرے ابو بہت پیار سے سب کو بلا کے, تو پھر وہ چہرہ بھی ویکھتے سن اس طرح کر کے, تو نال پیسے ویکھنا کہ چہرے تے کیسی خوشی آتی, کتنی خوشی آتی. اور خوشی رکے گی کہاں, اتنی دیر تک انگلی چلتی رہتی تھی. وہ خواب تھا کہ خیال تھا, ہائے ہائے ہائے, کچھ بھی نہیں انسان. آپ سمجھیں کہ وہ عیدیں وہی تھی جو عید کے ساتھ گزرتی تھی. آپ کا تو ایک گانا بھی ہے نا, ہاں, عیداں آئیاں نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایات جو چیزیں ہیں یہ نہ ہوتی تو دنیا میں بے رونقی ہوتی. ہماری عید ہوتی تھی, میری بہنیں جو چوڑیاں وغیرہ لینے جاتی تھی, میں ساتھ جایا کرتا تھا. تو میں سب سے چھوٹا تھا, تو میری ایک ڈیوٹی لگی ہوتی تھی. تو یہ جو رنگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے, یہ کمال
कुदरत है मेरे मालिक की कि ये हर दिन का एक अपना मज़ा, अपनी चाशनी है। और हमारे जो त्यौहार हैं उनका एक अपना मज़ा है, खूबसूरत है। खूबसूरत है बहुत। आरिफ साहब, आपने अपने वालिद की उसी रिवायात को कायम रखते हुए बच्चों को भी उसी तरह आप ईद देते हैं, और उसी तरह वही जैसे होता है ना कि ईद के दिन किसी एक घर में खाना होता है, कोई एक जहाँ पे सब बहन भाई इकट्ठे, सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे, तो वो घर कौन सा है आपके रिलेटिव्स में? आपका ही है क्या? जी मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे अब्बा का घर पूरा जो है वो मेरा ही घर माना जाता है। हाँ। और मेरे घर वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे बहन भाई भी आ जाते हैं और मेरी ईद हो जाती है। और माशाल्लाह से मेरे ये अल्लाह का करम है, मैं समझता हूँ कि उसकी वंड है, ये बड़ी करम नवाजी है उसकी। और ये बड़े नसीबों वालों को नसीब होती है जो बड़ों का अज़ाज़ आपको जब मिलता है। मेरे वालिद साहब मुझे दुआ दिया करते थे कि मैं दुनिया दे रवां ना रवां, मेरियां दुआवां तेरा पिछा करनगियां। कोई बड़ी बात हुंदी है जेड़े लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं या आशिक हो जाते हैं, कि रब उहदे ते इतना मेहरबान हुंदा है कि मैं सामने तुहाडे बैठा होया और कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ बाप की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी। और ये त्यौहार जचता ही तब है जब उसमें एक दो बुजुर्ग बैठे होते हैं, जब उनसे आप शाबाशी लेते हैं, उनसे आप ईदी मुस्कुराहट में लेते हैं, प्यार करके लेते हैं। ये रौनकें हैं। लफ्ज इस्तेमाल किया माँ बाप की एहतराम, इज्जत और इश्क आपने बताया, जब प्यार हो जाए वालिद से, इश्क हो जाए, हाँ। क्या बात है। तो फिर आपको एक तजर्बा मिल जाता है आपकी ज़िंदगी में। मैं छोटा जब बच्चा सा तो मैं उसले 80 साल का सा, 50-60 साल का तजर्बा मेरे अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। रोज मैं अपने बाप के नाल बैठ के गल्ला करता सा। आपके वालिद आपके हीरो होते हैं। हीरो। और वो आपके आइडियल होते हैं। जैसे मेरा सबसे छोटा बेटा 8 साल का है, उसका आइडियल मैं हूँ। मेरे तीनों बेटों का आइडियल मैं भी हूँ। जैसे वो रवायात ये चलती जा रही हैं, जो बेगम साहिबा का सवाल था, अब आगे काम को भी आप शिफ्ट कर रहे हैं माशाल्लाह बच्चों में। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, एक को हम देख रहे हैं, जीन्स में आ रहा है उनके आ रहा है। मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि आप ये करो, लेकिन ये एक कुदरती अमल है। मुझे किसी ने, मैं अपने अब्बा के साथ रहता था, उनका रंग खुद ब खुद आना शुरू हो गया था मेरे ऊपर। लेकिन रब खुद रो बूटे खुद पैदा करता है। फनकार बनाए नहीं बनता, फनकार पैदा होता है। लेकिन जो बनाए जाते हैं वो अकेडमियों में आप इंजीनियर, डॉक्टर बना सकते हैं। फनकार जो होता है ये पैदाशी होता है, इसकी एक रिदम होती है। बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और सारी तालीमात दी, कुरान पाक की तालीमात दी, लेकिन बच्चे हमारे वीडियोस डालते रहते हैं अपनी सोशल मीडिया पे, में होगा उनके, तो उन्होंने डांस की वीडियो लगा दी, तो टाइमिंग होगी। तो नीचे कमेंट्स ये आ रहे हैं, बच्चों को ये क्या सिखा दिया? अब मैं कह रही हूँ ये हमने नहीं सिखाया। बेटा ये आपको गलत फहमी है, आप नहीं सिखाते। ये बत्ती बंद करके घर में अपने बच्चों को डांस की तालीम देते हैं और गाना लगाते हैं। ये आपके सामने मुतब्बर बने हुए हैं, बेसिकल तो डांसर है ना। डांसर नहीं, मैं फनकार हूँ यार। मैं फनकार तुसी कह दो, फनकार ते आ बैठे ने, जो मर्जी बीमार हो जाए, जो मर्जी सही हो जाए। आपकी सबसे यादगारी एक ईद होती है ना, कि जो आपकी बस यादों में ही है कि वो ईद नहीं आ सकती। मुख्तलिफ पहलू हैं इसके। एक बचपन की ईद है जो कभी वापस आ ही नहीं सकती, और एक जो अपनी फैमिली के साथ जो आपकी जिंदगी शुरू होती है जी, तो आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं। तो ये ईदें जब गुजरती है वो यादें वापस रिपीट होती हैं आपकी, आपका बचपन वापस आता है। अब जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो 8 साल का है जी, तो वो उसकी पपियाँ जफियाँ जो है ना, वो हर चीज़ मुझे मनवा लेती हैं। वो कह देता है पापा जी ये अच्छा, कोई मैं अगर कोई चीज़ लेके गया तो डब्बा पकड़ लेगा, कहेगा थैंक यू पापा जी, हालांकि को पूछेगा ही नहीं है जो है कि एक बादशाही उम्र होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई फिक्र फाका लुट जाना। देखो बाप जो होता है, माँ बाप जो होते हैं, वो अपनी औलाद के लिए लुट जाए, यही सबसे अच्छा, वो बड़े बेटे का क्या नाम है माशाल्लाह जो परफॉर्म करता है? उसका नाम आलम लोहार जूनियर है। अच्छा, अपने दादा पे रखा है आपने? क्योंकि मुझे अपने अब्बा से प्यार है। इश्क बताया आपने, इश्क माशाल्लाह। और मैं नहीं चाहता कि वो कागजों में भी खत्म हो। आलम लोहार से पैदा नहीं होना, लेकिन वो रवे ना। देखे ना जिन्होंने पूरी दुनिया में चिमटा बजा के गाना गाया, क्या बात, वो इज्जत और एहतराम के साथ इधर बैठे, और जिन्होंने बीवी के चिमटे खाए हैं वो ऐनक लगा के उधर बैठे हैं। तो आरिफ साहब आप ये बताएं कि आपके भी घर का खाना बड़ा मशहूर समझा जाता है, क्या स्पेशल डिश बनती है ईद पे? गोश्त, गोश्त इसी पे फोकस है। अच्छा, मटन मटन बस।
करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, हाँ, बस मतलब हाँ, सब्जी गोश्त भी जरूर साथ। होना चाहिए। गोश्त होना चाहिए, नहीं तो बच्चे मेरे उस दिन बाहरों मंगवा लें दिन। ये सारे बच्चों का यही है। आरिफ साहब, आप ये बताएं कि सोशल मीडिया कितना यूज करते हैं? नहीं, बहुत कम। मैं वही बात है कि आप जिसको बहुत ज़्यादा चेक करते हो तो आप उसके गहराव में आ जाते हो। हाँ। आजकल ये चल रहा है। वाह वाह तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें और अल्लाह पे तवक्कल रखें कि बेहतर होगा जो भी होगा। नहीं, आप क्या कहते हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की टेलीविज़न पे आने के लिए, पहली दफ़ा इस तरह, हालांकि इतना बड़ा नाम आपके वालिद साहब का था, फिर आपने भी कितनी मेहनत करके आए हैं, तो आपको लगता नहीं है कि अब हर दूसरे दिन एक सोशल मीडिया के थ्रू नया सिंगर, नया एक्टर, नया कॉमेडियन पैदा हो नहीं, रहा जिसने आना उसने आना है। है? अच्छा, आप किसी को रोक नहीं सकते। बात है कि आप वही बात कि आप अपने काम को फोकस करें हाँ। और अपनी डायरेक्शन को देखें और अपना काम करते कान रहें। पलेट के लंघ जाओ। अपना काम करते हैं। अगर आपको मिलना है तो उसी में मिलेगा। बेशक। तो इंशाअल्लाह ताला रास्ते आपके बनते जाएंगे। आप किसी को मत देखो, आप किसी को देखकर आप अपना काम क्यों खराब कर रहे हैं भाई? हाँ हाँ, आप आगे बढ़ते जाएं, काम करते जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबकी हौसला अफजाई करें, प्यार करें सबसे। दुनिया में नफरत के लिए दुनिया नहीं बनी, प्यार के लिए बनी। तो जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसमें जितना प्यार बांटा जाए उतना कम है।